Hello friends, very good morning to all of you. In today's video, we are going to discuss the drug picture of arsenic album. More precisely, I would like to tell you, I would be discussing the whole essence, the whole mental makeup of arsenic album, through which you will be able to diagnose each and every case pertaining to arsenic album. You will all agree that to become a learned homeopath, or if you are learning or understanding homeopathy, you must understand the constitutional makeup of a remedy, the whole essence picture of a remedy, because we have to match our drug picture with patient disease picture for the complete cure. Cure is not just giving relief to the patient, it is treating the whole totality of the symptom of the patient so that he may not suffer with the same symptoms, disease to the longer and longer extent in future. Cure is a deeper meaning. If you all are learning homeopathy, you must understand that cure is not just giving relief to the patient's symptom, it has a lot deeper meaning. But when we prescribe our medicine on just fewer symptoms, we are unable to attain cure. So in today's picture, we are going to learn about the arsenic album. We will go in deep and learn the essence, because many a times it is seen that we just note down 2-3 mentors like avarice and dishonest or delusions and all, but we are unable to get any mental picture with these symptoms. We have to learn the layers, mental layers of a patient, because many a time it is seen that, like in arsenic also you can see, the arsenic is all total about anxieties and insecurities, which they will judge with bossy nature or the demanding nature. Similarly, in the lycopodium also you can see that lycopodium is basically a coward remedy, but the males of lycopodium are excessively showing their bravo attitude in the society so that they can judge their coward nature. So likewise, we will try to understand the whole drug picture of arsenic album in today's video. Hopefully you will like it, and before starting the video, I request you all to please subscribe to my channel. So now let's start the video. आर्सेनिक एल्बम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है फास्टिडियसनेस, या बहुत ज़्यादा नीट क्लीन होगा पेशेंट, या कोई पेशेंट अगर आता है हमारे दिमाग में, अगर हम उसमें आर्सेनिक एल्बम ढूंढने लगते हैं, जैसा कि हमारी टेंडेंसी रहती है शुरू में, तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट बहुत नीट एंड क्लीन है। फास्टिडियस का मतलब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ होता है, मतलब वो जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होता अपनी चीज़ों में, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा नीटनेस चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं शुरू में, उसमें ढूंढने लगते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेशेंट में, क्योंकि जनरली हमारी आदत है कि पैथोलॉजिकल सिम्टम पे कोई पेशेंट आया है, या जैसे कि राइनाइटिस के लिए कोई पेशेंट आ गया, या हमारे दिमाग में कोई चीज़ चलती है, पहले से हमें पता है पैथोलॉजी गैंग्रीन में, राइनाइटिस में जैसे कि आर्सेनिक एल्बम जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, तो हमें पता है पेशेंट इस चीज़ क्या है, तो हम आते ही सोचने लगते हैं कि आर्सेनिक एल्बम दी जा सकती है, और हम उसमें ढूंढने लगते हैं क्या पेशेंट नीट एंड क्लीन है, क्या पेशेंट फास्टिडियस है। लेकिन मैं आज आपको आर्सेनिक एल्बम एक नए एंगल से समझाना चाहती हूँ। आर्सेनिक एल्बम का जो पूरा थीम आज हम पढ़ने वाले हैं वो रिवॉल्व करता है, आर्सेनिक एल्बम पूरी तरह से रिवॉल्व करता है इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटीज़ के अराउंड। सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम जो है वो इतना एंग्शियस है, इतना इनसिक्योर पेशेंट है, इतना इनसिक्योर इंसान है कि वो अपने अराउंड ये सब चीज़ें क्रिएट करेगा। उसके मन में इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, उसको लगता है कि हर चीज़ उसके हाथ से छूट रही है, वो बहुत इनसिक्योर्ड है, तो उसे कंट्रोल करना है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ छूट रहा है, उसे कंट्रोल करना है, तो वो सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसा कि आर्सेनिक होता है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि कुछ भी उससे छूटे ना। कंट्रोल करना है उसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नीटनेस, क्लीनलीनेस या फास्टिडियसनेस चालू करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि उससे छूट ना जाए चीज़ें। अब जब फास्टिडियसनेस की बात आती है तो हमें पता है नक्स भी बहुत फास्टिडियस है, पर यहाँ बड़ा डिफरेंस है नक्स की फास्टिडियसनेस में और आर्सेनिक में। क्या नक्स जो है वो अपने काम को परफेक्ट करने के लिए फास्टिडियस है,
नक्स जो है बहुत कॉम्पिटिटिव जील है उसमें, उसको लाइफ में औरों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंता है आगे बढ़ने की। उसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है? कंपटीशन, जील है, उसको आगे बढ़ना है, इसलिए वो फास्टिडियस है। जबकि आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस है बिकॉज ऑफ हिज और हर इनसिक्योरिटीज। उसको टेंशन है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो लूजर प्रूव ना हो जाए, कहीं उसके हाथ से जॉब चली ना जाए, इसलिए वो फास्टिडियस है। इसलिए वो दिखाएगा कि वो कितना फास्टिडियस है टू द जॉब। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नक्स जो है, अगर आप नक्स का ऑफिस देखेंगे तो आपको जाते ही, एंटर करते ही समझ में आ जाएगा कि ये बंदा बहुत ही वर्कोहॉलिक है। ये 24/7 अपने काम में ही इंडल्ज रहता है। हो सकता है कि नक्स के ऑफिस में उतनी ऑर्डरलीनेस ना हो, उतना नीट एंड क्लीन ना हो, लेकिन आपको जाते ही या उससे मिलते ही ये समझ में आ जाएगा कि ही इज़ वेरी वर्कोहॉलिक, और उसके दिमाग में 24 घंटे अपना काम ही है कि उसको कैसे कंपटीशन में अपने आप को प्रूव करना है या आगे बढ़ना है। जील है उसमें जीतने की। ठीक है, जबकि आर्सेनिक का अगर आप ऑफिस देखेंगे, आर्सेनिक का काम करने का एरिया देखेंगे, तो इट वुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी ऑर्डरली। एक एक चीज़ उसकी जगह पे होती है। ठीक है, बिल्कुल जगह पे मिलेगी आपको एक एक चीज़। आप जो कहते हैं ना कि अंधेरा करके आंख बंद करके भी कोई भी चीज़ वहाँ ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल आर्सेनिक के ऑफिस में आप ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो इतना ऑर्डरलीनेस में रहेगा, नीट एंड, क्योंकि उसको लगता है कि जब कोई उससे मिलने आए, उसके पास आए, तो वो एकदम परफेक्ट पिक्चर शो करना चाहता है सबको अपने, क्योंकि वो अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज को बाहर नहीं आने देना चाहता। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो एक इम्परफेक्ट आदमी है, उसको शो करना है परफेक्शन। सिमिलरली फास्टिडियसनेस की अगर यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं, तो नेट्रम्यूर इज ऑल्सो वेरी फास्टिडियस। पर नेट्रम की जो फास्टिडियसनेस है, नेट्रम्यूर की जो फास्टिडियसनेस है, वो है रिगार्डिंग टाइम। टाइम की पंक्चुअलिटी के लिए नेट्रम्यूर फास्टिडियस है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आर्सेनिक जो है वो अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाता जा रहा है। तो जैसे एंग्जाइटीज बहुत ज़्यादा है, जैसे फियर ऑफ डिजीज है, उसको फियर ऑफ डेथ है बहुत ज़्यादा, फियर ऑफ हेल्थ है, ये उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं जो उसको हमेशा इन फियर में रखती है कि वो बीमार पड़ जाएगा या वो उसकी डेथ हो जाएगी, जिस वजह से वो विभिन्न तरह के आपको हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मिलेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको अपने अंदर से इनसिक्योरिटी है कि ये मर ना जाएं, तो ये विभिन्न तरह की हेल्थ एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हेल्दी डाइट लेते हुए मिलेंगे, और आपको मतलब योगा करते हुए या अपने ऊपर बहुत फिटनेस कॉन्शियस, बहुत ध्यान देते हुए मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक बहुत नीट एंड क्लीन ही होता है, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी बहुत आगे होता है। आप आर्सेनिक की पूरी पिक्चर देखेंगे, आपको एक बहुत ही परफेक्ट आदमी समझ में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी इनसिक्योरिटी है हेल्थ को लेके, तो वो उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है कि कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, तो वो उसको कवर करने के लिए हमेशा हेल्थ एक्टिविटीज़ में लगा रहेगा। उसके दिमाग में चलता रहेगा योगा या फिटनेस या अपना अच्छा खाना पीना। हो सकता है कि अदर रेमेडीज़ में ऐसा ना मिले आपको, हो सकता है कि कोई जंक फूड ही खाता रहेगा, कोई नहीं ध्यान देता है अपने ऊपर, तो दैट इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कैसे वो अपनी हेल्थ में लगा रहता है, कैसे अपने मतलब ऑफिस में हर जगह वो अपना दिखाएगा बहुत अच्छा कि वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि नक्स से कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज़ को। तो आर्सेनिक जो है, पूरा जो हम थीम पढ़ने वाले हैं आर्सेनिक का, जो भी हम चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं अभी आगे, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आर्सेनिक अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाता है, कैसे ढकता है, और यही चीज़ आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। वहाँ कोरिलेट करना है, वहाँ पे आपको परफेक्ट मेडिसिन का चुनाव करना है, जिसे हम कहते हैं ना परफेक्ट सिमिलियम देना है, तभी पेशेंट ठीक कर पाएंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं आर्सेनिक के बारे में और कुछ। आर्सेनिक को अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लाइफ में हमेशा सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको हमेशा अपने अराउंड लोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अकेले रहने में उसको दिक्कत है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके साथ रहना क्योंकि दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। फॉस्फरस पेशेंट ऑल्सो डिमांड कंपनी। ठीक है, लाइकोपोडियम ऑल्सो डिमांड्स कंपनी, लेकिन यहाँ पे सबका डिफरेंस है। फॉस्फरस की कंपनी आप बहुत इंजॉय करोगे। फॉस्फरस में एक सिंपैथेटिक, एक अडोरेबल, मतलब एक अफेक्शनेट टच आता है। आर्सेनिक चाहता है, आर्सेनिक को चाहिए लोग उसके पास हमेशा रहें, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे हों, हमेशा उसके पास हों। क्यों चाहता है वो ऐसा?
क्योंकि उसको कई तरह के फियर्स आते हैं मन में, कई तरह की एंग्जाइटीज चल रही होती हैं, इनसिक्योरिटीज रहती हैं कि कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, हमेशा वो इन्हीं टेंशन में रहता है। तो उसको क्या एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ऐसे ही उसको ऑफिस में भी चाहिए सपोर्ट सिस्टम, हर जगह ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, सोचते सोचते उसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहें ताकि उसकी इनसिक्योरिटीज कम हो। ठीक है, अगर आर्सेनिक बीमार हो जाएगा तो घर वालों का जीना दुश्वार कर देगा उसको, कि मैं मर जाऊंगा या मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारे टाइम बड़बड़ाता रहेगा और उसमें मतलब परेशान कर देगा वो घर वालों को, और सारे टाइम उसके पास बिठाए रखेगा। फिर भी वो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता है, वो बस एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे कैसे भी करके ये वो करते रहो उसको, ताकि उसकी इनसिक्योरिटी सेटिस्फाई रहे। ठीक है, जबकि फॉस्फोरस जो है वो उसकी कंपनी आप सब इंजॉय करते हैं। फॉस्फोरस में काफ़ी अफेक्शनेट सिंपैथेटिक टच होता है। किसी को कुछ हो गया तो फॉस्फोरस वुड बी द वन जो उसके लिए सोच रहा होगा, केयर कर रहा होगा, उसकी सिंपैथेटिक होगा। लेकिन आर्सेनिक के दिमाग में क्या आएगा, अगर किसी को कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ बैड हो रहा है, और ऐसा मेरे साथ हो जाए तो, ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, तो आर्सेनिक का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट होता है फॉस्फोरस से। ठीक है, लाइकोपोडियम एक अलग उसका कंपनी डिमांडिंग रहता है, उसको चाहिए कि मेरे साथ में मत रहो, पर अगले कमरे में बैठे रहो, क्योंकि उसको क्या अकेले रहने में डर लग रहा होता है। उसका प्रॉब्लम है अकेले रहने में डर, उसका प्रॉब्लम है कावर्ड एटीट्यूड। ठीक है, जबकि आर्सेनिक के मेन प्रॉब्लम है उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी एंग्जाइटीज, उसके फियर्स। ठीक है, तो ऐसे आर्सेनिक का आप थीम समझ गए हैं कि बेसिक जो थीम है उसकी है इनसिक्योरिटीज, उसकी एंग्जाइटीज उसके दिमाग में हमेशा चलती है। तो ऐसे अभी हम देखेंगे और सिम्टम्स में कैसे ये थीम काम करती है। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं आर्सेनिक जो है एक पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। बच्चों में बहुत सारे डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस जो आ गए हैं, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, सेलाइक डिजीज़, या फिर थैलेसीमिया, या फिर कैंसर्स हैं चाइल्डहुड में। अगर बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन मैच होता है तो 100% आप ये मेडिसिन से बहुत सारी जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के इसमें एक टर्म आती है, फ्रेड ने दी थी, एनल रिटेंटिवनेस। ठीक है, बच्चों के इसमें कैसे आती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए इसको, डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एनल रिटेंटिवनेस देखिए क्या है, ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज़ की जाती है वैसे जो बहुत ज़्यादा ऑर्डरली हैं। ठीक है, उनके ऑर्डरलीनेस, उनके नीटनेस, उनके जो हैबिट्स की वजह से, उनकी जो ये हैबिट है इसकी वजह से दूसरों को समस्या होने लग जाए या वो दूसरों को समस्या देने लग जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनल रिटेंटिवनेस। ठीक है, कैसे आता है ये, जब बच्चा छोटा है ओरल फीड्स पे रहता है, फिर बाद में उसे टॉयलेटरी हैबिट सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो वो अपने ऑर्डरलीनेस की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, वो नहीं सीखना चाहता टॉयलेटरी हैबिट्स, और वो अपने पेरेंट्स को एज अ पनिशमेंट वो वहाँ पे कंपल्सरली स्टूल को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो एज अ पनिशमेंट दे रहा है वो पेरेंट्स को बाय होल्डिंग हिज स्टूल। तो दिस इज कॉल्ड एज एनल रिटेंटिवनेस। अब इसे इमोशनल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट है, अगर मान लीजिए हम एडल्ट्स में बात कर रहे हैं, कि जो पेशेंट है आर्सेनिक का वो बहुत ज़्यादा, हम सभी जानते हैं, डिमांडिंग है, सेल्फिश है। ठीक है, और बहुत उसको ऑर्डरलीनेस चाहिए, फास्टिडियस है, डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। अब वो प्लीज़ हो नहीं रहा है। ठीक है, इमोशनल लेवल में मन में उसको नहीं अच्छा लग रहा है किसी के साथ, जो भी उसके ऑफिस में किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका क्या एटीट्यूड आ जाएगा, कंपल्सरली नो करेगा वो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉस है आर्सेनिक एंड ही इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज़, ही इज़ वेरी फास्टिडियस, ठीक है, वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अपने एम्प्लॉय से, जल्दी से होगा नहीं वो। ठीक है, तो कंपल्सरली नो करता रहेगा वो। हर जो भी एम्प्लॉय छुट्टी के लिए जाएगा या एम्प्लॉय अपना काम दिखाने के लिए जाएगा, तो उसको परेशान करने के लिए उसका हमेशा कंपल्सरी नो निकलेगा। ठीक है, आपको समझ में आई एनल रिटेंटिवनेस। बचपन में वो बच्चे जो टॉयलेटरी हैबिट्स में नहीं करना चाहते थे, स्टूल को रोकते थे एज अ पनिशमेंट टू देयर पेरेंट्स, वो अभी बॉस बनने के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करते हैं, कंपल्सरली नो करते हैं उनको, क्योंकि वो अंदर से प्लीज़ नहीं हो रहे उनसे सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे ही घर में वो वाइफ को या बच्चों को हमेशा कंपल्सरली नो करेगा, क्योंकि वो खुद इमोशनली डिससेटिस्फाइड चल रहा है उनसे, तो उसको उनको परेशान करना है, अपना एंगर अंदर रोक के रख रहा है, वो एंगर को सामने नहीं आने दे रहा है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि वो एक परफेक्ट आदमी है, वो अपना एंगर नहीं दिखाएगा एक लेयर पे, एक प्लेन पे। ठीक है,
तब वो नो करेगा। लेकिन ये जिद जब बढ़ जाएगी, उसके अंदर ऑब्स्टिनेसी बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा मतलब डिससेटिस्फाइड होता जाएगा, तो वो रैग में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाएगा, ठीक है। और साथ में आगे जाके वो रिवेंजफुल भी हो जाता है आर्सेनिक, बिल्कुल डेफिनेटली आर्सेनिक का पेशेंट रिवेंजफुल में भी जाता है। बहुत ज़्यादा ऑर्डरली है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। पार्सिमोनियस क्या होता है? पार्सिमोनियस मतलब किफ़ायती, बहुत अपने किफ़ायत से चलने वाले लोग। कंजूस तो ये होते ही हैं, हमें पता ही है, एवरेज। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा इनसिक्योरिटी है, इनको इनसिक्योरिटी है कि इनको कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में ना जाए, पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए। भाई मेरी हेल्थ को लेकर चिंतित है, कल को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ जाऊँगा। तो ये हमेशा किफ़ायत से चलेंगे, कंजूसी में रहेंगे, ऑर्डर में चलेंगे। और बाकी ये एनल रिटेंटिवनेस आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सिमिलरली ये मैंने आपको समझाया। तो केंट रिपर्टरी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये रूब्रिक्स मिलते हैं आर्सेनिक में, और मतलब इन रूब्रिक्स में आर्सेनिक मिलती है। ऑब्स्टिनेट होता है आर्सेनिक, जिद्दी, ठीक है। फास्टिडियस होता है, डेफिनेटली डिफिकल्ट टू प्लीज है बहुत ज़्यादा। अवराइस होता है आर्सेनिक, कंजूस होता है, और रैग बिल्कुल है। हमने देखा कि देखिए फर्स्ट प्लेन पे वो नो करेगा, कंपल्सरी नो, दैट इज द एनल रिटेंटिवनेस ऑफ द आर्सेनिक, ठीक है। देन ही विल शिफ्ट टू रैग and later on he may be revengeful also. Fastidiousness जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है हमारे दिमाग में, हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि आर्सेनिक एक फास्टिडियस मैन है या फास्टिडियस वुमेन है। हाँ, ये बात गलत नहीं है कि हम कह सकते हैं अगर कोई मेल है तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो सकता है वो, या कोई लड़की है तो मिस परफेक्शनिस्ट हो सकती है, मिस या मिसेस जो भी। तो उस हिसाब से अगर हम फास्टिडियसनेस पे बात करें आर्सेनिक के, तो इनकी जो ये पर्टिकुलरनेस है, परफेक्शन है इनका, ये आपको इनके हर लेवल पे देखने को मिलेगा। इनके कपड़े आपको बहुत अप टू डेट, प्रेस्ड, बहुत नीट एंड क्लीन, ये खुद बहुत नीट एंड क्लीन मिलेंगे आपको। इनकी मतलब हर चीज़, इनका बैग, इनके सराउंडिंग, इनका पूरा एनवायरनमेंट, ये मतलब अपने एनवायरनमेंट में टोटली ऑर्डरलीनेस क्रिएट करके रखते हैं, नीटनेस क्रिएट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बैकग्राउंड में वो जो एंग्जाइटी चल रही है ना, इनसिक्योरिटी, उस वजह से ये हमेशा परफेक्ट बने रहेंगे, ठीक है। तो और ये दूसरे को मतलब इनके दिमाग में इतना ज़्यादा ये घुस जाता है फास्टिडियसनेस, नीटनेस, कि ये हमेशा दूसरों को भी हमेशा करेक्ट करते मिलेंगे, और ये इसको अपना बर्थ राइट समझते हैं। ये हमेशा थोड़ा थोड़ा हर किसी को टोकते रहेंगे हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट इनका बोलना चालना भी बड़ा ऑर्डरली होता है। आप नोटिस करेंगे आर्सेनिक पेशेंट आपकी क्लिनिक में आया है तो उसके जो बोलने का तरीका है वो भी बड़ा ऑर्डरलीनेस में होगा, और इनकी राइटिंग या कुछ भी आप इनसे संबंधित चीज़ देखेंगे ना तो वो बड़ी ऑर्डरलीनेस में होगी, और ये हर चीज़ को नोटिस भी करते हैं। अगर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी ग्रामर में या आपके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो ये आपको करेक्ट करेंगे। अगर ये आपके बॉस हैं, आप कोई काम करके लेके गए इनके पास, काम आपने चाहे बढ़िया किया, लेकिन ये फुल स्टॉप को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है या यहाँ पे नहीं लगाया। तो दे आर पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है। और ये उसे करेक्ट करना ही है इनको, मतलब वो तो इनका बर्थ राइट है, उसे तो ये करेक्ट करेंगे ही, ठीक है। और रोज रोज ये आपको करेक्ट करते रहेंगे, लेकिन जिसकी वजह से ये अंदर से डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और जिस दिन आपने कुछ ज़्यादा इनके हिसाब से, इनके पैरामीटर्स के हिसाब से ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, उस दिन ये बहुत भयंकर वाले रैग में आ जाएंगे और बढ़िया वाले आपका क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो आर्सेनिक का जो पेशेंट है, एक तो डिटेल्स के लिए भी बहुत पर्टिकुलर होता है, ठीक है। बहुत इनकी हर काम में जो डिटेलिंग है वो भी बड़ी परफेक्ट होती है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे इनके प्रोफेशंस भी बड़े मेटिकुलस होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया या क्राफ्टमैन्स वर्क हो गया, बड़ा परफेक्ट काम करेंगे ये और मेटिकुलसली करेंगे, हर डिटेल्स भी इनकी सारी परफेक्ट होंगी। और चलिए मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई मेटिकुलस वर्क नहीं भी है तो एट द अगर इनके थ्रू जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है ना, उसकी जो शेप, जो लास्ट फाइनल अपीयरेंस होगी वो बड़ी परफेक्ट देंगे ये, ठीक है। फास्टिडियसनेस आर्सेनिक के आप समझ गए, एंग्शियसनेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से है, और वो हमेशा अपने मेटिकुलस स्टैंडर्ड्स को दूसरे पे भी थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे ही नेट्रम जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फास्टिडियस हो सकते हैं घर के अंदर, ठीक है।
आर्सेनिक आपको घर, ऑफिस, हर जगह फास्टिडियस मिलेगा। हो सकता है नक्स आपको फास्टिडियस ऑर्डरली ऑफिस में मिल जाए, घर में नहीं मिले, क्योंकि उसको अपने काम में आगे निकलना है, कंपटीशन उसको काम का है, वहाँ वो हो सकता है, घर में हो भी नहीं भी। आर्सेनिक हर जगह है। नेट्रम जो होते हैं, नेट्रम्यूर, वो घर पे बहुत फास्टिडियस होते हैं, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो क्या है, वो एक सेल्फ क्रिटिकल उसमें चल रहे होते हैं, वो अपने गिल्ट और फेलियर्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसलिए वो फास्टिडियस रहते हैं। और वो अपने मेटिकुलस एटीट्यूड को सिर्फ खुद पे ही रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली पे थोप सकते हैं, बाकी वो अपने घर के अंदर आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी फास्टिडियस रख सकते हैं, ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए आर्सेनिक का जो फास्टिडियसनेस है, जो उसके नीटनेस का कंपल्शन है, जो परफेक्शन है, परफेक्शन हर चीज़ में आप समझ गए कि उसके खुद के लुक्स में है, उसके कपड़ों में, उसके बैग में, उसकी कॉपी, उसकी किताब, हर चीज़ में फास्टिडियसनेस है उसकी। और एक तरह से आप ये भी समझ जाइए कि सेल्फिश एटीट्यूड भी इसमें कहीं ना कहीं उसका है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो मतलब अपने का वो लूज आउट ना कर दे, ठीक है, वो दूसरों के आगे लूज आउट नहीं कर दे, इसलिए भी वो फास्टिडियस है। इफ यू लुक आफ्टर पेनीज द पाउंड विल लुक आफ्टर देमसेल्फ। अंकल स्क्रूज को तो आप जानते ही हैं। अंकल स्क्रूज को जो फियर रहता था अपने पैसे को लेकर, सेम इनसिक्योरिटी रहती है आर्सेनिक को अपने पैसे को लेकर। देखिए, अभी हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, आर्सेनिक की पूरी थीम मैं आपको इनसिक्योरिटीज़ पे समझा रही हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आर्सेनिक की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादातर फिजिकल इनसिक्योरिटीज़ हैं, जबकि नेट्रम्यूर और पल्सेटिला में भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, पर वो इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जबकि आर्सेनिक को क्या है, फिजिकल इनसिक्योरिटी है, उसको फियर ऑफ पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन लगा रहता है, उसको लगता है कि मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरत के समय मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो पैसा जोड़ता रहता है, ठीक है। इसीलिए वो सेल्फिश रहता है, मीन रहता है, क्योंकि वो किसी को पैसे देने में डरता है कि जब मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। तो धीरे धीरे जो ये जोड़ने की आदत है ये इतनी बढ़ जाती है कि वो हर चीज़ को जोड़ता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से रखेगा, तरीके से रखेगा, हर चीज़ को जमा करेगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ें अननेसेसरी हैं, स्क्रैप भरा हुआ है, लेकिन वो पिन्स हैं, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ जो उसके घर में होती है उसको बहुत अच्छे से जमा करके तरीके से रखेगा, क्योंकि उस और अच्छे से क्यों रख रहा है, तरीके से इसलिए रख रहा है क्योंकि उसे ये मन में ये फ्यूचर में उसके काम आएगा, ठीक है। तो ये जो फियर है ये उसकी फास्टिडियसनेस का कारण है, ये इनसिक्योरिटी उसकी फास्टिडियसनेस का कारण है। तो इस वजह से उसको टेंडेंसी कलेक्शन की भी पड़ जाती है, और वो बाकी सब अपनी चीज़ों को इम्पोज भी करता है दूसरों को। जैसे कि अंकल स्क्रूज जो थे कार्टून में, वो जो लोग डेथ में थे उनको खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता था, वो कहता था कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। ऐसे ही आर्सेनिक खुद पैसा बहुत जमा करेगा और दूसरा लोगों को, जो गरीब लोग हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको खुद को वो मानेगा कि इनका कारण ये खुद हैं, ये इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनकी हेल्प करने की ज़्यादातर संभावना नहीं है। कई बार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं आर्सेनिक के साथ में नहीं होती हैं। समटाइम्स इट मे हैपन। तो आर्सेनिक की फिजिकल इनसिक्योरिटी जो इतनी बड़ी है पैसे को लेकर, ये कब छूट सकती है? ये एक ही परिस्थिति में छूट सकती है, जब इससे बड़ी फिजिकल इनसिक्योरिटी उसे आ जाए, जो कि उसे रहती है फियर ऑफ डिजीजेज। उसको बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो पैसा वो कब छोड़ता है? एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागेगा, एक हेल्थ सेंटर से दूसरे हेल्थ सेंटर भागेगा, बहुत सारे विटामिन्स लेगा, बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा, क्योंकि उसे फियर ऑफ डिजीज़ लगा रहता है। फियर ऑफ कैंसर उसको बहुत ज़्यादा होता है, और आयरॉनिकली कैंसर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैंसर बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है इस तरह के लोगों में। तो हाइपोकॉन्ड्रिसिस की भी आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी एक है, फियर ऑफ कैंसर की, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर इन डार्क। तो उसे अंधेरे में, रात को रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको हमेशा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर करना होता है, किसी न किसी को अपने साथ में रख के। आपने छोटे बच्चों में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बताऊँ, ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अपनी चॉकलेट्स को या टॉफ़ीज़ को ना तो खा रहे हैं और ना किसी को देंगे। मतलब वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट इज़ द एटीट्यूड ऑफ आर्सेनिक। ना तो खर्च करेंगे, ना उनको खुद को चाहिए, वो बस जमा ज़्यादा करते हैं कि फ्यूचर में इसको खाएंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे बच्चे जो 4-5 पेन पेंसिल लेके जाएंगे, काम एक से ही करना है, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा मांग ले तो उसको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को इनसिक्योरिटी है कि एक पेंसिल ख़त्म हो गई या एक पेन ख़त्म हो गया, दूसरा नहीं चला,
तो 4-5 पेन लेके गए हैं, लेकिन किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है तो उसको नहीं देंगे। तो बचपन से भी आप ये ट्रेट ऑब्जर्व कर सकते हो, वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट वाला। इनको कलेक्शन करना है, जमा करना है, यूज़ में बहुत कम लेंगे, लेकिन इनकी चीज़ें सारी जो रिवॉल्व कर रही हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं इनकी फिजिकल इनसिक्योरिटीज़। तो आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा कि आपका जो पेशेंट है वो इमोशनल इनसिक्योरिटी में है या फिजिकल इनसिक्योरिटी पे है। अगर इमोशनली सेंसिटिव ज़्यादा है, इमोशनली इनसिक्योर्ड है, तो यू मे गो फॉर नाट्राम्यून एंड पल्सेटिला, अदरवाइज द पेशेंट में बी ऑफ आर्सेनिक एल्बम। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो हमें रेस्टलेसनेस की बात करनी ही पड़ेगी। आर्सेनिक जो है रेस्टलेस मेडिसिन के ट्रायो में आती है, और ये उसके अंदर की जो एंग्जाइटी है ये उसे कंटिन्यूसली रेस्टलेस बनाए रखती है। आर्सेनिक में क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, बहुत फिजिकल स्टेमिना नहीं होता है, तो इसलिए वो फिजिकली नहीं इतना रेस्टलेस मिलेगा जितना मेंटली रेस्टलेस मिलेगा। मेंटली जो है बहुत ज़्यादा उसमें रेस्टलेसनेस होगी। जो लाइन यूज़ की है वो इस तरह से बोली जाती है, मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। फिजिकल स्टेमिना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी स्टेमिना है उस हिसाब से एक पलंग से दूसरे पलंग पे, ठीक है, एक चेयर से दूसरे चेयर पे जाता रहेगा। लेकिन दिमाग में जो है इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं, उसे बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग के थॉट्स को रोकना पड़ता है। क्राउडिंग ऑफ थॉट्स चल रहा है माइंड में, एक जगह नहीं बैठ पा रहा है। और उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए बीमार हो गया तो उसको बिल्कुल लगेगा कि मैं अब बस ठीक नहीं हो सकता हूँ। उसका कंटिन्यूसली वो इस तरह के शब्द बोलता रहता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है दवाई लेने का, बच नहीं पाऊँगा, डॉक्टर को मत बुलाओ, मेरा तो आखिरी समय आ गया है। तो इस तरह के डिस्पेयर में चला जाएगा, सोच सोच के मेंटली रेस्टलेस होता रहेगा, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगा, ठीक है। उसको लगता है कि इट इज़ यूजलेस टू टेक द मेडिसिन, माई डिजीज इज इनक्योरेबल एंड आई एम श्योरली गोइंग टू डाई। डेथ से उसको डर भी बहुत लगता है ना, लेकिन फिर भी वो इस तरह के डिस्पेयर में जाके इस तरह की बातें बोलता रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं आर्सेनिक जो है एंग्जाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कई बार क्लिनिक पे सिर्फ पेशेंट एंग्जाइटी करके आते हैं, अगर आप उनकी थॉरो केस चेकिंग करोगे तो आर्सेनिक निकल के आती है, ठीक है। तो अटैक ऑफ एंग्जाइटी एट नाइट, ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड, एग्रावेशन मिडनाइट एग्रावेशन बहुत ही पर्टिकुलर सिम्टम है आर्सेनिक एल्बम में। अगर आपको कहीं भी मिडनाइट मिलता है तो आपको आर्सेनिक पे एक बार ज़रूर थॉट देना चाहिए। मतलब दिन में तो वो वैसे अकेला नहीं रह पाता, दिन में भी, और रात में भी उसके साथ क्या, रात को तो ये दिक्कत और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात को उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है मिडनाइट के समय, तो उसको कोई ना कोई उसके साथ में तब चाहिए होता है, ठीक है। तो ये उसकी रेस्टलेसनेस आपको समझ में आई कि रेस्टलेसनेस किस वजह से, जो उसके दिमाग में हमेशा एंग्जाइटी बनी हुई है ना, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, दिमाग में बहुत ज़्यादा उसके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। और जितना भी उसका फिजिकल स्टेमिना है, जितना भी वो चल पा रहा है, उस हिसाब से वो बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा अपनी पोजीशन को रेस्टलेसनेस की वजह से। नाउ सस्पिशन, आर्सेनिक के जो इनसिक्योरिटी है, एंग्जाइटी है, उसे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बना देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा इमोशनल इनसिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे भी उसको जो है उसकी फिजिकल इनसिक्योरिटी ज़्यादा है टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड हिज लव्ड वन। अगर आर्सेनिक एल्बम कोई फादर इन लॉ है जिनको अपनी डॉटर की शादी करनी है, तो ही विल बी वेरी मच वरीड अबाउट द सन इन लॉ, whether he will be able to take care of his daughter and all, and the insecurity is more on physical grounds rather than on emotional ground. Arsenic is very suspicious person, जिन इस वजह से इसको बहुत सारे फियर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन फियर है आर्सेनिक में, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है। अगर वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो उसको बहुत एंग्जाइटी रहेगी, सस्पिशियस रहेगा कि डॉक्टर की डिग्री क्या है, क्या डॉक्टर को मेरी बीमारी का नॉलेज है कि नहीं है, डॉक्टर ने ऐसे केसेस ठीक किए हैं। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, वो पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे मेरे जैसे पेशेंट्स आपके पास और आते हैं क्या, आपने कोई ठीक किए हैं क्या। मतलब इस तरह की अगर एंग्जाइटी आपको पेशेंट में मिलती है तो आप समझ सकते हैं, आप और चीज़ें उसकी देख सकते हैं कि क्या ये सस्पिशियसनेस उसकी जो ये इनसिक्योरिटीज़ की वजह से अगर आपको लगती है तो एक रूब्रिक आपका बन सकता है आर्सेनिक एल्बम के लिए ये। तो इस तरह से, और जो ये आप समझते हैं जो इसका शकी नेचर है, जो इसका मेटिकुलस नेचर है,
वो जैसे कि अगर मान लीजिए वो बिज़नेस में है, कोई बिज़नेस प्रपोजल आता है तो उसके लिए भी वो बहुत सस्पिशियस रहेगा, उसकी बहुत अच्छे से पड़ताल करेगा, ठीक है। बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं आर्सनिक किसी पे। तो ये जो है उनका सस्पिशियस नेचर जो है ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से होता है और बहुत सारे फियर्स इसकी वजह से डेवलप होते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अगेन फास्टिडियस और ऑर्डरली हो जाता है, बहुत ज़्यादा तरीके से काम करना, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करना हर चीज़ की, चाहे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे हम किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो वो बहुत सस्पिशियस रहेंगे उसको लेके। Now let me explain how Arsenic album is down to earth as well as aristocratic at the same time। है ना कंफ्यूजिंग बात कि कैसे कोई इंसान डाउन टू अर्थ भी हो सकता है और अरिस्टोक्रेटिक भी हो सकता है। देखिए, काम करने के जहाँ तक मामले में है, क्योंकि आर्सनिक को क्या कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता, किसी के भी काम से वो संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है, फास्टिडियस है। तो काम करने के मामले में जहाँ तक बात है, यू विल सी आर्सनिक एल्बम इज़ डाउन टू अर्थ। ऐसे बॉसेस, ऐसे बड़े बड़े बॉसेस जो आपको अपने कमरे की सफाई बिल्कुल खुद करते हुए मिले, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप जाएंगे, वो लोग वहाँ पे बहुत बड़ा बॉस है लेकिन आपको वो सफाई करता हुआ मिल रहा है, आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखिए कि अरे सर खुद झाड़ू लगा रहे हैं या सर खुद ये अपना टेबल साफ कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते, वहाँ पे जो लोग उनका कमरा ठीक करते हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो काम करने का जहाँ तक मामला है वो डाउन टू अर्थ होगा। ऑफिस में अगर कोई टैप लीक कर रहा है तो सबसे पहले आर्सनिक एल्बम जाएगा उसको ठीक करने के लिए। सल्फर होगा तो क्या करेगा, सल्फर के पास आइडियाज बहुत सारे होंगे, अरे उसको बुला लो, उसको बुला लो, उससे करा लो, ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी अच्छी सल्फर कर लेगा। लेकिन अगर जो सबसे पहले जाएगा वो आर्सनिक एल्बम, ठीक है, काम करने के मामले में डाउन टू अर्थ है, लेकिन उसका जो रहन सहन है वो अरिस्टोक्रेटिक है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छे से परफेक्टली रहना। चाहे आर्सनिक एल्बम की फाइनेंशियल कंडीशन पुअर भी हो, लेकिन वो जब भी घर से बाहर या घर के अंदर भी अगर रहेगा तो उसके जो सबसे फाइनेस्ट क्लोथ है वो पहन के आएगा वो आपके पास, या घर पे अगर है तो वो अपने तरफ से अपना अरिस्टोक्रेटिक लुक में रहेगा, ठीक है। उसके मैंने पहले भी बताया था, बहुत करीने से ये लोग रहते हैं, इनके बाल भी एक एक बाल इनका जमा रहता है, इनको दिक्कत हो जाती है अगर एक बाल भी इधर का उधर हो। फिर ये कंडीशन देखिए, वही अपन ने जो ध्यान दिया था कि ओसीडी में भी चला जाता है उसको, ठीक है, लेकिन इनका जो टेम्परामेंट है वो आपको समझना है। काम करने के मामले में ये डाउन टू अर्थ है, किसी भी तरह का काम, साफ सफाई से संबंधित कोई भी ऊपर नीचे जो भी काम है ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके पीछे कारण क्योंकि ये फास्टिडियस है, ये सेटिस्फाई नहीं होंगे जल्दी से अगर दूसरा कोई इनको काम करके देगा तो, ठीक है। लेकिन खुद के रहन सहन के मामले में, खुद के चैम्बर के मामले में इनके पास बहुत सुंदर आपको डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे इनके घर पे या इनके ऑफिस में रखे हुए, उसको लेके बड़े इनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी जो वेल्थ है, इनके जो सामान है वो आपको बड़ा अरिस्टोक्रेटिक लगेगा, क्योंकि उसको रखने से ये बड़े खुश होते हैं, ठीक है, इनको अच्छा लगता है एक अरिस्टोक्रेटिक लुक मेंटेन करना। क्योंकि क्या एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी यहाँ पे क्या है कि भाई मैं एकदम सबसे बेस्ट लगना चाहिए, बेस्ट परफेक्ट रहना चाहिए, तभी मेरी ऑफिस में वैल्यू होगी या समाज में वैल्यू होगी, तो ये अपना अरिस्टोक्रेटिक लुक मेंटेन करते हैं। Now arsenic is very determinate and obstinate kind of a person। बहुत ज़िद्दी होते हैं ये। Whatever is dear to him he will pursue thoroughly। He will become angry if someone tries to prevent him from doing so। एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद ये खुद की भी नहीं सुनते हैं। अगर इनके दिमाग में कोई चीज़ एक बार फिट हो गई, मतलब इनको पसंद आ गया ये इनको करना है, तो फिर ये उसके पीछे लग जाते हैं, फिर बहुत जिद्दी होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं। अगर कोई इनको वो करने से रोके तो ये फिर गुस्सा आ जाता है इनको। तो दे आर वेरी डिटर्मिनेट एंड ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटीज़। एंड अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादातर आर्सनिक जो है, चाहे वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, आप हाउसवाइफ को भी आर्सनिक एल्बम दे सकते हैं, बट दीज पीपल आर मोस्टली इंडिपेंडेंट बाय नेचर। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि भाई किसी और पे डिपेंडेंट होना, किसी और का काम लेना इनको अच्छा ही नहीं लगता, इनको अपने हिसाब से चलना ही अच्छा लगता है। तो दे आर इंडिपेंडेंट बाय नेचर। दे विल मेक अप देयर ओन माइंड एंड देन स्टिक टू इट। अपने दिमाग को, अपने विचारों को खुद ही बनाएंगे और फिर उसी पे लगे रहेंगे। दे हैव इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है इनके विचारों में। लैक ऑफ ओपननेस टू द ओपिनियन ऑफ अदर। यहाँ तक कि इतने रिजिड होते हैं कि इनको दूसरों के विचार सुनना तक पसंद नहीं है। इनटॉलरेंस देखी जाती है इनमें
टुवर्ड्स डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। दूसरों की चीज़ें तो पसंद आएंगी ही नहीं, बिल्कुल इनको जो खुद के दिमाग में इन्होंने सेट किया हुआ है वो ही जचता है इनको, ठीक है। एंड यू कैन सी सेल्फिशनेस ऑल्सो इन देयर पर्सनैलिटी। क्यों सेल्फिश है? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी जेनरस। इनको फिजिकल इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि इनको लगता है कि आज मैंने इसको ये दे दिया तो कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास कहाँ से आएगा। तो दे आर ओवरली सेल्फिश बाय नेचर, ठीक है। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। इरिटेबल ज़्यादातर ये अनटाइडीनेस, इनएफिशिएंसीज या वेस्टेज अगर हो रही है, इन चीज़ों पे बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत इरिटेबल होते हैं। घर में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा कोई बुजुर्ग व्यक्ति या ऐसी कोई लेडी जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल है टुवर्ड्स वेस्टेज, अनटाइडीनेस को लेके, वो रेस्ट ही नहीं करेंगे जब तक सब चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी, सेट नहीं हो जाएगा पूरा कमरा पूरा घर, तब तक उनको नींद नहीं आ सकती, ठीक है। थोड़ा भी इधर का उधर हुआ तो फिर वो इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ सोफेस्टिकेटेड आर्सनिक हैं, वो जल्दी से ना चिल्लाएंगे नहीं है, जल्दी से अपना गुस्सा शो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सोफेस्टिकेटेड। लेकिन क्या है, उनके अंदर आप देखेंगे कि बस अंदर ही अंदर एक वॉल्केनो चलता रहेगा, ठीक है। एंड वन डे वो इरप्ट होगा बहुत ही बुरी तरह से। तो केंट ने जो रूब्रिक इनके लिए आता है केंट रिपब्लिक में, वो हम देख सकते हैं रैग या इम्पल्स टू किल, ठीक है। तो एक दिन सडनली इनका जो अंदर ही अंदर वॉल्केनो चल रहा है, जो वो इरिटेबिलिटी बढ़ते 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 एक वॉल्केनो में तब्दील हो गई है, जो वो सोफेस्टिकेशन की वजह से ऊपर नहीं आ पा रही है, वो एक दिन फट जाता है और उसकी भरपाई आसपास के लोगों को करनी पड़ती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हाउ दे आर ऑब्स्टिनेट, सेल्फिश, इरिटेबल, इंडिपेंडेंट एंड दे हैव वॉल्केन ऑफ एंगर। टिल नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट आर्सनिक आर वेरी ड्यूटीफुल पीपल, ठीक है। अगर वो चाहे अपने ऑफिस के लिए हो, अपने वर्क के लिए हो, चाहे अपने घर के लिए हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, दे आर वेरी ड्यूटीफुल, ठीक है। घर में सबसे ज़्यादा पैसा बचत करने वाले लोग, घर में औरों की मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करने वाले लोग, या अगर पेरेंट्स हैं तो दे आर वेरी ड्यूटीफुल रिगार्डिंग देयर चाइल्ड एंड काफ़ी अच्छी वो पेरेंटिंग करते हैं मटेरियलिस्टिक लेवल्स पे। इतने इमोशनली चाहे वो नहीं खुल पाएँ बच्चों के आगे, लेकिन मटेरियलिस्टिकली और मतलब काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग वो करेंगे। लेकिन इस सब के रिटर्न में वो उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट वो बहुत चाहते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वो बस चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई होता रहे, बाकी वो अपनी ड्यूटीज़ जैसा कि मैंने अब तक आपको समझाया वो बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल करते हैं, चाहे वो वर्क फ्रंट हो चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के लिए हो। नाउ आर्सनिक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसमें अपन और बात करें तो अगर अपन डेली रूटीन भी देखें ना आर्सनिक का, तो बहुत ही रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ रूटीन रहता है, जिसमें बिल्कुल भी इनको ज़रा सा इधर का उधर बर्दाश्त नहीं है। जो इनका रिचुअल्स चल रहे हैं रूटीन के, मतलब सुबह से उठने को लेके अब मतलब कि इनको ये करना है, इनको ये करना है, इस काम को ऐसे करना है, तो वो एक रिचुअलिस्टिक मैनर में रहता है और ये बिल्कुल उसको वैसे ही करना पसंद करते हैं, ज़रा सा भी उसमें इधर का उधर इनको सहन नहीं होता। जिस वजह से अगर ये समस्या आगे बढ़ जाए, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आगे हो जाए इनको, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनमें डिल्यूजन रहता है, कंटामिनेट एवरीथिंग शी टचेज़। एक्चुअली इनको ये भी डिल्यूजन रहता है कि इनके हाथ में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं या कीटाणु लगे हुए हैं या बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। तो ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट्स आप देखेंगे जो कि बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं, कई साबुनों से अपने हाथ धोते हैं। एक बार चालू हो गए हाथ धोने तो बहुत देर तक कई साबुन यूज़ कर करके अपने हाथ धोते रहेंगे। उन्हें लग रहा है उनके हाथ में बहुत गंदगी लगी हुई है, कीड़े लगे हुए हैं, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि वो जहाँ पे भी, जिस वजह से जहाँ भी हाथ लगा रहे हैं वो चीज़ कंटेमिनेट हो रही है। या फिर ये ऐसी फीलिंग इनको किसी और के लिए भी आ सकती है, किसी पर्सन के लिए भी आ सकती है कि वो इधर आया था तो उसकी वजह से यहाँ पे गंदगी हो गई, कंटेमिनेशन हो गया, वो पर्टिकुलर इंसान वहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था। तो इनको ना इस तरह की बड़ा साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाती है और इनको बिल्कुल भी ये चीज़ हटाना इनके दिमाग से पॉसिबल नहीं होता। फिर ये बार बार उस जगह को धोते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे। अगर इनके दिमाग में ये चीज़ चली गई तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। तो बहुत सारे पेशेंट्स ओसीडी के आप आर्सनिक एल्बम से ठीक कर सकते हैं।
प्रोबेबली आप पहले पर्सनैलिटी ज़रूर मैच कर लीजिएगा। पर अब डिल्यूजन्स की बात शुरू हो ही गई है, तो लेट मी डिस्कस जो बहुत सारे डिल्यूजन्स आर्सेनिक में होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि आपको रिपर्टरी में भी मिल जाएंगे एज रूब्रिक्स, और ये आपको मटेरिया मेडिका में भी कॉमनली मिल जाते हैं। और ये आपको बहुत आसानी से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट आता है तो आपको बता भी देता है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है उसकी पर्सनैलिटी या थीम निकालने के लिए, उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए। लाइक डिल्यूजन, सम बॉडी पार्ट्स आर डिफॉर्म्ड, उसको लगता है कि उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट, जैसे कभी लगता है पेशेंट को कि मेरी एक आंख डॉक्टर साहब आपको लगती है कि दूसरी आंख की तुलना में छोटी है। ये बहुत सारे लोगों को डिल्यूजन रहता है, वो आपसे आके कहेगा इस तरीके से। साथ में जैसे बहुत सारे लोगों को डिल्यूजन रहता है कि मेरी नोज़ जो है वो बहुत ही अजीब सी है। मतलब वो पेशेंट को चाहे कोई भी सीरियस इलनेस है, वो उसके लिए आपके पास आया है, लेकिन आपको लगेगा बड़ा इररिलेवेंट सा वो बातें करने लग गया कि भाई डॉक्टर साहब आपको लगता है कि मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। तो वो ना इस तरह के डिल्यूजन्स आपके साथ शेयर करते हैं कि उनको लगता है कि उनका बॉडी पार्ट कोई डिफॉर्म है, या उन्हें डिल्यूजन रहता है अगर उन्हें सीरियस इलनेस है, टाइम हैज़ कम टू डाई, बस ये उनका अंत समय आ गया है। ज़्यादातर उन्हें डिल्यूजन रहता है इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए कि उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, उनका अंत समय आ गया है, और फिर वो कहते हैं कि दवाई लेना बेकार है, डॉक्टर को कॉल करना बेकार है। या उन्हें डिल्यूजन रह सकता है समवन इज़ कॉन्स्पायरिंग टू मर्डर हिम, उनको सस्पिशियस तो होते ही हैं, आपको समझाया है पीछे मैंने, सस्पिशियस हैं, तो उनको डिल्यूजन रह सकता है कि कोई उनके खिलाफ उनको मारने की साजिश रच रहा है। उनको रात के समय थीव्स और रॉबर्स जैसे घुस रहे हैं उनके घर में, इस तरह का डिल्यूजन भी आता है। उनको शक होगा घर में थीव्स घुस गए हैं, फिर वो उठ के चेक करेंगे, मानेंगे नहीं किसी की बात। और कभी कभी डिल्यूजन हो जाएगा कि पुलिसमैन एंटरिंग हिज हाउस, भाई थीव्स घुसेंगे तो फिर पुलिसमैन की इमेजिनेशन भी आएगी, तो ऐसे उनको फिर ये इमेजिनेशन आ जाती है कि पुलिसमैन एंटरिंग देयर हाउस। नाउ अगेन वन मोर डिल्यूजन दैट स्टाफ फैमिली विल, देखिए बहुत ज़्यादा इनको इनसिक्योरिटी रहती है, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, पैसे के लिए, फूड के लिए, तो इनको ये भी डिल्यूजन रहता है कि देयर फैमिली विल स्टार्व और इट मे स्टार्व, तो ये सब अभी हमने डिल्यूजन्स की बात की। उसी तरह कैसे आर्सेनिक के अंदर बहुत सारे फियर्स, यानी कि भय, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर बना रहता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आर्सेनिक में ना बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, मतलब बार बार नए थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उसके दिमाग में से, कंटिन्यूसली चल रहा होता है, परसिस्टेंट थिंकिंग, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया है केंट ने। और उसको क्या हमेशा दिमाग में ये चलता रहता है कुछ ना कुछ, और बहुत सारे फियर्स आते रहते हैं इनसिक्योरिटी की वजह से। कई बार बहुत बार ये मेडिसिन पैनिक अटैक्स में बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए तो ऐसे ही कुछ फियर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक तो बहुत इनसिक्योर्ड है तो उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि वो अकेला ना रह जाए, ही इज़ गोइंग टू बी अलोन विदाउट एनी फ्रेंड, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर हमेशा सताता है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ incurable disease, fear of being disabled, fear of death। आप सब देख रहे हैं कि ये सारे फियर्स जो है उसकी हिडन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से है। बाहर वो बंदा या पेशेंट आपका कितना भी बन ले कि वो इनसिक्योर नहीं है, लेकिन आप उससे बात करेंगे, उसका केस लेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी उसकी हिडन इनसिक्योरिटीज़। और ये सारे फियर्स, डिल्यूजन या उसका मेंटल मेकअप आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके पेशेंट की कंप्लीट थीम जो है वो इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटी पे बेस्ड है, तो आप समझ सकते हैं फिर वो आपका पेशेंट जो है आर्सेनिक एल्बम का है। होम्योपैथी में अगर आप अपने पेशेंट ठीक करना चाहते हैं, अगर आप होम्योपैथी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, होम्योपैथी एज ए प्रोफेशन चलाना चाहते हैं, तो आपको एक बात समझा दूँ, आपको पेशेंट की मेडिसिन की थीम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, पेशेंट की पूरी पर्सनालिटी, उसका मेंटल मेकअप आपको मैच करना पड़ेगा मेडिसिन से। उस हिसाब से अगर आप मेडिसिन देते हैं तभी आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी को होम्योपैथी प्रैक्टिस करना कहते हैं। अदरवाइज़ यू आर नॉट अ होम्योपैथ, ठीक है, आप क्वैक हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप मेडिसिन की थीम को पेशेंट की थीम से मैच करना सीख लीजिए।
सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ऐसे ही कोई और रेमेडी की पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस रेमेडी का नाम लिखकर भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।